Good morning, dear students. Continuing our unit 3, that is A part, S block elements. In the previous classes, we talked about alkaline earth metals, various physical properties, their comparisons, some similarities, diagonal relationship, and many more. Today, we are going to again see one most important part of alkaline earth metals, that is their chemical properties. Now, while talking about chemical properties, we will see some important elements in them, that is calcium, barium, and we are just going to compare them. And by comparing, we will find some similarities. So, let's start with various chemical actions. Like first, we will see action with water. Action with water means reaction with water. केमिकल लैंग्वेज में उसे एक्शन बोला जाता है. केमिकल रिएक्शन विथ वाटर की जगह आप एक्शन विथ वाटर भी लिख सकते हो. सो फर्स्ट वी विल सी वेरियस एलिमेंट्स. यहाँ जो है एलिमेंट्स हम कौन कौन से कंसिडर करने वाले हैं, इनमें सिमिलरिटी देखेंगे हम. कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इनमें से वी विल कंपेयर देम. ठीक है, तो पहले हम जैसे देखेंगे कैल्शियम को. तो कैल्शियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो क्या होगा. जब वाटर है तो वाटर मीन्स HOH, इस तरह की बॉन्डिंग है ना. और कैल्शियम की वैलेंसी है +2. सो दैट्स वाई यहाँ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. तो CaOH नहीं रहेगा, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है 2. तो क्रिस क्रॉस, दैट मीन्स वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड हेयर. और OH में 1 आता है ना, तो इसलिए वो CaOH ट्वाइस. अब क्या लिबरेट होगा यहाँ, हाइड्रोजन गैस. सो यहाँ सेम रिएक्शन विल बी शोन बाय स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम ऑल्सो. So these are a kind of similarities between these three elements here. So all will liberate hydrogen and they will react with water and they have a byproduct like H2. Now is it balanced here? No, it's not balanced. So as we want here 2 hydrogen use हो गया, 2 यहाँ है, तो we can just simply put 2 here. So our reaction is balanced. Now go for the second reaction. Now we can go for hydrogen, that is action with H2. H2 के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो यहाँ आप देखेंगे कैल्शियम जब आप H2 के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्राइड बनेगा CaH2. एज पर द वैलेंसी यहाँ ट्वाइस वाला प्रोडक्ट बनेगा. अगर ये कैल्शियम हाइड्राइड को आप फर्दर रिएक्ट करोगे वाटर के साथ, मतलब इसे मॉइस्ट किया जाए, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और वहाँ फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, सो इन दिस वे इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड what is the action of hydrogen on calcium, so you can stop here also by writing calcium hydride as a product, or you can show the further reaction also. Okay, so they will form the hydrides and they will be decomposed यानी कि जो calcium hydride है उसको break किया जा सकता है जब आप उसे water से decompose करोगे, means when water will react with it and we will find the calcium hydroxide as a main product. Now third type of reaction, that it is mainly giving reaction with oxygen. So it's very common, we are knowing calcium oxide is forming CaO, that is nothing but calcium oxide. If we compare similarly, we will get for the barium में भी BaO है ना, क्योंकि दोनों की वैलेंसी ट्वाइस है इसलिए यहाँ 2 हम नहीं लगा रहे CaO. ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, सो दैट्स वाई वी आर हैविंग द प्रोडक्ट लाइक दिस CaO. नाउ इफ़ वी आर बैलेंसिंग, यहाँ क्योंकि इसके पास ट्वाइस है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. अगर यहाँ 2 आता है तो Ca के सामने भी 2 आएगा. सिमिलर केस फॉर द बेरियम ऑल्सो. सो इन दिस वे यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस.
Fourth type of reaction, if you see the reaction with halogens. Okay, halogens के साथ इनका reaction कैसा होता है? So halogen means chlorine, bromine and so on. So we will see for the calcium. Calcium when reacts with chlorine, they will form respective halides, यानी कि CaCl2. क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की 2 है, so we are getting the product like this. CaCl नहीं बनेगा क्योंकि क्लोरीन is having the 1 वैलेंसी, तो क्रिस क्रॉस जाता है, तो CaCl2. अगर आप उसे कंपेयर करेंगे बेरियम के साथ, बेरियम का चलो ब्रोमीन के साथ दिखा दो, आप क्लोरीन के साथ भी दिखा सकते हो. We will have the similar kind of products. So bromide we are getting. If we are combining with calcium, then also the same thing. That means we are getting the electrovalent compound. इन्हें कहते हैं electrovalent compound, यानी कि halides जो होते हैं वो कैसे हैं? electrovalent, यानी कि ionic products are forming here. उसके बाद फिफ्थ टाइप है कि रिएक्शन विद नाइट्रोजन. चलो कैल्शियम जो है, अगर नाइट्रोजन जब बोलोगे तो N नहीं रहेगा, इट इज़ इन द कंबाइंड फॉर्म, सो N2, तो ये बनाएगा नाइट्राइड. क्या बनाएगा? नाइट्राइड. सो लेट्स ट्राई. नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है? यहाँ N2 आ जाएगा, कैल्शियम की वैलेंसी नाइट्रोजन की 3, तो Ca3N2. इसका नाम क्या है? बाकी तो अबाव प्रोडक्ट जो थे वो कॉमन थे, तो यू आर नोइंग दैम. तो नाइट्राइट और नाइट्राइड में बहुत फ़र्क होता है ना. सो इट इज़ कैल्शियम नाइट्राइड. नाउ व्हेन दिस कैल्शियम नाइट्राइड इज डिकम्पोज्ड इन वाटर, वी आर अगेन गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो इन विच अमोनिया गैस इज लिबरेटेड. नाउ इफ़ यू हैव टू बैलेंस, यहाँ देखो Ca के सामने क्या है? 3 है, तो डायरेक्टली आप यहाँ 3 लगा दो, ठीक है. और फिर यहाँ नाइट्रोजन के सामने 2 है, तो इस नाइट्रोजन के सामने 2 लगा दो, अपने आप बैलेंस हो जाता है. ओके, ये तो हो गया नीचे का. अब यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ भी आप देखिए Ca3 है, तो आप यहाँ 3 लगा दो, N के सामने ऑलरेडी ट्वाइस है. सो इन दिस वे you have to balance the reaction. Whenever chemical reactions are asked, or when any action of any particular chemical or compound is at that time, you have to write the symbols properly, you have to write the reaction properly with respect to their names, and then you have to balance them. After balancing only you will get the marks for it. Okay, and simply they will get they will carry 1 marks for it. Okay. फिर उसी के साथ अगर आप अमोनिया को देखोगे 6, अगर ये कैल्शियम अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है तो व्हाट विल हैपन? विल सी है. अगर अमोनिया के साथ वो क्या बना सकता है? तो अमोनिया के साथ वो बनाता है अमोनिएट्स, ठीक है, क्योंकि दे डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया and on evaporating the solution the hexaammoniates are separated. So we are getting a special type of product here. complex is forming here. hexaammoniate इसका नाम है. hexaammoniate क्योंकि 6 ammonia molecules are bonding with calcium. तो जब आप उसे बैलेंस करोगे तो product will be like this. So hexaammoniate is the product. Similarly अगर आप इसको क्लोरिक एसिड्स यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्लोराइड्स मिलेंगे. जैसे Ca है तो CaCl2 मिलेगा, और सीधा सीधा है ये H2 मिल जाएगा. अगर आप बेरियम के साथ रिएक्शन दिखा रहे हो तो बेरियम क्लोराइड मिलेगा, H2 एज अ बाय प्रोडक्ट रहेगा. बैलेंस करना पड़ेगा आपको क्योंकि H के सामने 2 है. सो इन दिस वे द रिएक्शंस कैन बी studied.